अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, देयर आर वेरी लो चांसेस कि बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट बनेगा। जो मॉम घर पे है, हाउसवाइफ है, उसको भी गिल्ट हो रहा है सबको कि गिल्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ। जो वर्किंग मॉम है उसको भी गिल्ट हो रहा है कि मैं बच्चे को और फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। दिमाग आपका एक प्लास्टिक की तरह है एंड इट कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट यू आर गिविंग इट। आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स बहुत सारे कपल्स में एक वो डिस्टेंस आ जाता है उनके रिलेशनशिप Right. में। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? न्यू पेरेंटिंग के फेज में होते हैं तो इवन व्हेन द हस्बैंड इज ट्राइंग टू हेल्प, पार्टनर इज ट्राइंग टू हेल्प, बट मॉम्स को बहुत अनसपोर्टेड फील होता है। स्टिल दे फील कि यार मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों होता है? बट दिस इज एग्जैक्टली द होल कॉन्सेप्ट कि आप इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली यूज करो और अपने फेवर में यूज। So why did you leave aerospace engineering for emotional intelligence? Was that crazy shift? You know that moment जब आप अपने बच्चे पर चिल्ला देते हो over something small and then you regret, or that moment when your partner says something and you explode, not because what they said, but because you've been keeping everything in for weeks. That's not a parenting problem. That's not even a relationship problem. That's an emotional intelligence problem. And today we are going to crack the code on it. So, guys, today we have with us Shivam, who's a certified emotional intelligence coach. He has worked with over 500 individuals, 50 plus organizations, and he has been featured on top podcasts like Raj Shamani's Figuring Out. And he uses neuroscience, not just motivation, to create real and lasting change. So, parents, grab that cup of coffee and let's dive in. Hi Shivam, welcome to Moms Unmuted. Thank you so much. आपने इतने busy schedule से हमारे लिए time निकाला. Thank you so much for having me. So we know you as an emotional intelligence coach, but for our audience, can you give your brief introduction who Shivam actually is? Very difficult question to answer. एक identity जो personal identity अगर बात की जाए, I identify myself more as a husband, as a father, and as a person who likes to explore and be curious about things. Amazing. Because again, that is a major part of my life. Matlab, this is where I feel very, very connected to. Professional part is, of course, I mean, as a coach, as a speaker. So, well, definitely another part of my life. But majorly, that drives me a lot to do things. And of course, a curious person. I'm a very curious person. So, I like to learn things a lot. I didn't know, aap father bhi ho. So, I just got to know that. Wonderful. And I also know that you're an aerospace engineer, right? Right. So why did you leave aerospace engineering for emotional intelligence? Was that crazy shift? Shift तो था crazy for people especially. Even if I look back at it right now, तो सुनने में लगता है, सोच के लगता है. Even for family, I think. हाँ, obviously, मतलब शौक था, मतलब लोगों के लिए शौक तो था वो चीज़ कि छोड़ना जॉब को and then eventually doing this. But I think मेरे लिए when I was doing this transition, तो मेरे लिए कभी वो लगा नहीं कि I'm doing something big or major. It was so smooth, it was so maybe strategic और planned तरीके से हो रही थी चीजें कि it was never felt like कि कुछ बड़ा कर रहा हूँ मैं, कुछ big shift. Okay. Now I look back at it and understand कि नहीं था. It was a big shift. Yeah. It was a major thing to do. लेकिन हाँ, मतलब change क्यों आया? Because like I mentioned, right, I'm a very curious person. I like to learn things, and curiosity took me to engineering because engineering is all about getting to know the details of things. क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? Airplane fly क्यों करता है? Right. So that took me to bachelor's, master's, PhD. सारी journey complete करी engineering की. I was working as a professor, working as a researcher. Wow. लेकिन उस प्रोसेस में एक और पार्ट जो शिफ्ट चालू हो चुका था was helping to understand myself about emotions, human behavior, psychology. वो सारी चीजें भी started to एक curiosity आ गई थी because curiosity तो you cannot limit the curiosity. So वो curiosity कहीं ना कहीं फिर बाकी चीजों में भी आनी चालू हो चुकी थी. In terms of दुनिया से क्यों है, लोग सफर क्यों करते हैं, तो फिलोसफी, मतलब बहुत सारी चीज़ बीच में आनी चालू हो चुकी थी. वहाँ से वो शिफ्ट आना पकड़ना चालू हुआ कि आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस फील्ड, दिस पाथ. प्रोसेस में आई रोट सर्टेन बुक्स गॉट पॉपुलर. वहाँ से थोड़ी क्लैरिटी मिली, लोगों से कनेक्शन हुआ एंड ये पाथ खुलना चालू हो चुका था उस पर्टिकुलर पॉइंट तक. Amazing. उसके बाद अगेन ऑफ कोर्स आई डिड देन कोर्स इन accreditation इन एज अ लाइफ कोच. आई डिड माय मास्टर इन साइकोलॉजी. वो सारी चीज़ें फिर कर करके अब here I am to talk completely about emotional intelligence and work on that. Wow, amazing. बहुत interesting journey है आपकी. So for our audience, what emotional intelligence actually is and why is it more important than IQ for parents? Right. See, emotional intelligence नाम है emotional intelligence. Emotions और intelligence normally हम साथ में कभी use नहीं करते.
वी ऑफन से दैट राइट कि जो बंदा इमोशनल है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, राइट, बिकॉज इमोशनल बंदा मतलब व्हेन यू आर फ्लोइंग इन योर इमोशंस तो आप दिमाग से नहीं सोच एग्जैक्टली सकते. राइट. बट दिस इज एग्जैक्टली द होल कॉन्सेप्ट कि आप इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली यूज करो और अपने फेवर में यूज करो. एंड एग्जैक्टली लोग यही नहीं करते. We use emotions as a way to escape, or we use emotions as a way to express, but we hardly use emotions to take action on things that are important for us. Right. For example, अगर आपके पास आप कुछ फील कर रहे हो, दो तरीकों से हम नॉर्मली डील करते हैं. पहला तरीका इग्नोर, सैड फील कर रहे छोड़ो यार, इतना समय नहीं करो सैड फील करने का, डू लॉट ऑफ स्टफ. या दूसरा पार्ट एक्सप्रेस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, बट मेजॉरिटी पीपल जस्ट एक्सप्रेस. सैड फील कर रहा है, मैंने वेंट आउट कर दिया, निकाल दिया अपने सिस्टम से सारा कुछ, अब लग रहा है ठीक है, आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे. बट क्या हमने एक्शन लिया उस काम के ऊपर जिस कारण से मुझे सैड फील हो रहा था? नहीं. माय लाइफ स्टिल रिमेंस द सेम. इमोशंस का काम क्या है? आपको हिलाना, ताकि आप हिलने के कारण एक एक्शन लो और अपनी लाइफ को वहां से मूव कराओ. राइट. तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू द फर्स्ट पार्ट, इग्नोर और एक्सप्रेस, व्हिच इज हाफ वे, बट अगेन आगे बढ़ जाते हैं वहां से. एक्चुअल वर्क है इमोशंस का, अंडरस्टैंड इट, एक्सप्रेस इट, प्रोसेस इट एंड टेक एक्शन ऑन व्हाट इज नीडेड. एंड दिस इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इनटू द पिक्चर. So important. And now why is it so important for parents? Because जब तक when you're not a parent, but your life is still structured, you can plan things in your way. कि मुझे वेकेशन पे जाना है, let's say, तो you can plan कि वेकेशन पे जाना, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, रात भर जागेंगे, पार्टी करेंगे, whatever. But when you become a parent, majority of the things in life gets out of control. Right? आप कुछ नहीं, आप वेकेशन प्लान करो, but vacation becomes again about raising the same child in a different environment. Exactly. Right? So nothing changes actually. You are still the same parent, and you still do the parenting activities वहाँ पर जाकर भी. तो ये पार्ट पे हैंडल कर पाना, दैट इतनी सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है, बट स्टिल भी आपके इमोशंस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू लर्न दैट. बिकॉज एक बच्चे का जो इंटेलेक्ट होता है या इमोशनल हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, वो पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है. लाइक 0 से 3 साल की उम्र तक बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल दिमाग होता है, डेवलप ही नहीं होता है. राइट. तो वो आप पे डिपेंडेंट है उन सारी चीजों के लिए, और उनके लिए इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स भी आपसे ही आ रहे हैं. कि अगर उनके साथ इमोशंस का बम्बार्डिंग होता है उनके अंदर, तो वो बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं, और आप उनको लॉजिक दोगे, उनको समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज उनका वो लॉजिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है. एंड उस पॉइंट पे वो आपके इमोशंस के थ्रू खुद को रिजॉल्व करने के या अपने टैंट्रम्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको तो इमोशंस आर हाईजैक्ड, तो उनको अब रिजॉल्व करना उन इमोशंस को. बट द मोमेंट यू स्टार्ट ऑल्सो रिएक्टिंग, तो जिस तरीके से उनका लर्निंग फेज है टू डील विद देयर इमोशंस, टू हैंडल देयर इमोशंस बेटर, वो आपको मिमिक करने वाले. आप भी अगर रिएक्ट करने लग जाओ, दे लर्न द सेम थिंग. सो अगेन यू आर रेजिंग अ चाइल्ड हु इज अगेन अनेबल टू डील विद देयर इमोशंस. तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पेरेंट्स फॉर श्योर. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, मैथ्स के मार्क्स को, सारी चीज़ों को, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग आई डोंट थिंक पेरेंट्स ज़्यादा सोचते भी हैं. हम सब कुछ को भी आउटसोर्स कर देते ना, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, अब ये बेस्ट स्कूल है हमारे सिटी का, हम इतने पैसे लगा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उनका जो सबसे बेसिस है, कैसे वो खुद के साथ फील कर पा रहे हैं, वो तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही आ रहा है. वो तो आपका कैसा उनके साथ रैपो रिलेशनशिप बिल्डअप है. आप हर कुछ को आउटसोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली द वेरी बेसिक केयर गिविंग नेचर दैट यू आर बिल्डिंग विद द किड्स. सो दैट हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर श्योर. So is emotional quotient something that somebody is born with? Yeah, it can be developed over time. It can be developed over time. Some parts, of course, we learn through our genetics, we learn through our conditioning and environment. But the best part about emotional intelligence is that it can be learned at any particular age compared to IQ. Okay. IQ is something 40-50% of the IQ traits are genetic. और बाकी जो 40-50% IQ का वो develop होता है by the right environment, with the right things. EQ on the other hand is something that you can learn and develop with at any age. And there's a very interesting concept called neuroplasticity in brain that talks about कि दिमाग आपका एक प्लास्टिक की तरह है, and it can change its form and shape depending on the environment you are giving it. अच्छा. हाँ, it actually changes, and that is how therapy works ना. Therapy क्यों work करता है? आप किसी से बात करो, अपनी बातों को रिजॉल्व करो, अपनी इमोशंस को एक अलग तरीके से डील कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एक नए तरीके से चैलेंज कर पा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तो ये प्रोसेस आपको अलग पर्सन बना देगा. तो ये दिमागी तो चेंज हो गया, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई. आप जो थे आज अभी जो हो, और 10 साल पहले जो थे, क्या वो सेम पर्सन है? नहीं.
आप तो चेंज हो गए, आपका दुनिया देखने का नजरिया चेंज हो चुका है. Hmm. क्यों? बिकॉज योर ब्रेन हैज आल्सो इवॉल्व्ड ओवर टाइम. Yeah. और इवॉल्व मतलब चेंज हुआ है हाउ इट्स Right. फंक्शंस. तो दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो ये बेस्ट पार्ट है कि आप जिस पॉइंट पे वो करना चाहोगे उतना कुछ पॉइंट पे कर सकोगे. बट ऑफ कोर्स फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. नॉर्मली क्या होता है, इस एज वी बिकम वेरी रिजिड अबाउट आवर आइडेंटिटीज कि दिस इज हु आई एम. Yeah. बट दिस इज नॉट, आई मीन कौन क्या है, आई मीन वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. एंड जितना फ्लेक्सिबल रहोगे अपनी आइडेंटिटी को लेकर और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बिकॉज आपका सिचुएशन लाइफ में आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो. Hmm. Different situations that come at different parts of the life. Right. You have to be spontaneous and adapt accordingly to the situation. Correct. जितना आप adaptable होगे उतना ज़्यादा better करोगे deal life के साथ. So I always say this one thing that adaptability is the सबसे strongest form of emotional intelligence. Adaptability. Yeah, if you are able to adapt to different environments, then you can deal with different things without actually sticking to it or clinging to certain I'm environments. very bad at it. मतलब मुझे आज कोई बोले इस सिचुएशन से दूसरे एनवायरनमेंट में जाके रहो. हम सिक्योर फील करते हैं ना, एक कंफर्ट में हम Yeah. सिक्योर फील करते हैं. बिकॉज ब्रेन उसी पे काम करता है. मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए होता है वो कंफर्ट, Comfort and अपना security. कंफर्ट जोन. हाँ बिल्कुल. सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग फॉर द एनी पर्सन. So what are these emotional needs of a person? जब हम बात करते हैं इमोशंस की तो देयर आर 9 प्राइमरी नीड्स. Okay. दैट्स सिक्योरिटी, अटेंशन, पर्पस, मीनिंग, कनेक्शन, वल्नरेबिलिटी, इंटिमेसी. ये सारे 9 नीड्स होते हैं. बट द सोर्स ऑफ ऑल दोज नीड्स कम फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग जो स्टार्ट होता है वो हमेशा सिक्योरिटी से स्टार्ट होता है. एंड ये बच्चे के साथ भी होता है. अगर आप बच्चों को देखोगे, बच्चों का आप रूटीन अगर थोड़ा इधर से उधर हिला दोगे ना तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करना चालू करते हैं. क्यों? बिकॉज उनको वो एनवायरनमेंट से, वो हैबिट से, वो तरीकों से सिक्योरिटी मिल रही है. सेम हमारे साथ होता है. जैसे हम Yeah. शिफ्ट कर रहे हैं, एक नई जगह शिफ्ट करेंगे तो दिमाग में चीजें चल रही होंगी, सिक्योरिटी हिल जाती है. तो सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेम गोस फॉर रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप कब बहुत ही ब्लूमिंग और ब्यूटीफुल होता है जब आप सिक्योर फील करोगे अपने पार्टनर के साथ. द मोमेंट इनसिक्योरिटी क्रिप्स इन, अगेन एवरीथिंग गोस फॉर अ टॉस. करेक्ट. आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे, इंटीमेट नहीं हो पाओगे, कुछ मतलब एवरीथिंग गोस फॉर अ टॉस बेसिकली आफ्टर दैट. तो मतलब एवरीथिंग कोर ऑफ इट सिक्योरिटी. जब सिक्योरिटी बिल्ड होगी देन बाकी चीजों पे हम वर्कआउट करना चालू करते हैं. एंड ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम द वेरी बेसिक इवोल्यूशनरी मीनिंग दैट वी गिव टू इट. हम जंगलों से बाहर निकले हैं. जंगल से बाहर निकलने के लिए एकमात्र चीज की जरूरत थी, वो थी सिक्योरिटी. आप जब तक जंगल में बैठे हो ना और बस ये वेट कर रहे हो कि अब आप शेर आएगा, बाघ आएगा, तब तक आप कुछ और प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे. राइट. द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द जंगल एंड नो दैट यू सिक्योर, अब कोई शेर नहीं आने वाला. नो आई कैन थिंक अबाउट समथिंग बेटर इन लाइफ. तब आप ग्रो करते हो, चैलेंज करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो. जब तक आपके दिमाग में है कि शेर आने वाला, शेर आने वाला, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. So दिमाग से वो निकालना है चीज and you have to adapt. Yes. Come out of the comfort zone. Now let's talk about parents and emotional well-being. बिल्कुल. See, you know, there are many parents, moms who juggle everything and at end of the day feel very burnout and what silently. So what are those 3 signs that a parent or a mom is emotionally overloaded and not just tired? Tired का भी एक बड़ा रोल है इस चीज में. Because when you're tired, it shows up in your emotions as well. मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपके फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो नेचुरली आपका फ्रस्ट्रेशन निकलना चालू होगा बच्चों पे या अपने आप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर भी. सो दैट इज वन ऑफ द साइंस कि आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा कंपैरेटिवली फील करना चालू कर दोगे. द सेकंड साइन इज कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो खुद के साथ, कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो खुद के साथ. एंड दैट हैपेंस अ लॉट विद मॉम्स. बिकॉज कितना भी हम बात करें इक्वालिटी की, कितनी भी बात करें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की, moms carry a very huge responsibility for raising the child, and biologically as well as evolutionary in every aspect. जो पार्ट मॉम का है वो डैड चाह कर भी इक्वल नहीं कर सकते. राइट. दे ट्राई बट कुछ चीजें ऐसी है जो मॉम ही कर सकती है. और बच्चे भी इंक्लाइंड है उस डायरेक्शन में. मतलब द चाइल्ड विल नेचुरली बायोलॉजिकली गेट इंक्लाइंड टू यू कंपेयर टू द फादर. मतलब बायोलॉजिकल है वो चीज. तो वो वाला पार्ट आ जाना है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बर्डन बढ़ गया. अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि देयर मेनी टाइम्स मॉम्स पर्सनल लाइफ, देयर प्रोफेशनल लाइफ, देयर एम्बिशंस गोस फॉर अ टॉस एंड वहां से कॉन्फिडेंस हिट करना चालू करता है. तो सेकंड साइन ये होता है कि यू स्टार्ट लूज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. हु एम आई एज अ पर्सन? आई एम जस्ट अ मदर, व्हिच इज अ नाइस थिंग. नो वन वांट्स कि वो चीज गलत है, बट वो क्वेश्चन मार्क बाकी चीज में आना चालू हो जाए, डाउट आना चालू, देन वो चीज है कि आप यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू स्टार्ट इग्नोरिंग योरसेल्फ कंप्लीटली. कि आप अपनी चीजों को भूल के सिर्फ बाकियों को सर्व करने में रेडी हो चुके हो.
Right, because as much as you're a mom, which is a very important thing and a very responsible thing to do, you're an independent human being as well. और जब अपने आप को लूज कर दोगे ना, तो वो जो पार्ट आप सर्व करना चाहते हैं वो भी पार्ट becomes very haywire. तो वो पार्ट को मैनेज कर पाना कि it's important for you to be a good mom, it's also important to be a good human being, an independent human being for yourself as well. But again, for all of that to happen, you require a very good support system. Because कहना आसान है ये सारी चीजें, but अगर support system नहीं available है तो सारा बर्डन मॉम के ऊपर आएगा and then challenges happen. दूसरी चीज, you need better understanding of handling yourself, your kids, your emotions, and also कि बाकी लोग कैसे responsible है, बाकी लोगों को क्या responsibility मान सके. And third most thing, get out of the mom's guilt. वो तो मुझे लगता है कभी नहीं होता है. Right, वो सबसे मुश्किल काम है, I understand this thing, but ये बचपन से ना सिखा दिया जाता है लड़कियों को भी, और सिखा मतलब एक बायोलॉजिकल भी है कुछ पार्ट, और सिखा भी दिया जाता है ये चीज कि you have to exist to serve, you have to exist to be a nice lady, a nice girl, a good girl वाला चीज. तो जब भी आप कुछ और करना चालू करते हो तो आपको दिमाग में नेचुरली आती है, नहीं तो गलत कर रही हूँ मैं, एंड वहां से गिल्ट आता है. बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एड्रेस दैट गिल्ट. ये गिल्ट है, ये कोई आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, एंड गिल्ट इज नेचुरली इमोशन. Where is this guilt coming from? Is this guilt is coming from society standards of what you want to be seen as? Right. Correct. तो अगर और the funny thing is also कि some society also adds up to the pressure. मुझे ऐसे लगता है कि जो मॉम घर पे है, हाउसवाइफ है, उसको भी गिल्ट हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. जो वर्किंग मॉम है उसको भी गिल्ट हो रहा है कि मैं बच्चे को और फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. आई थिंक हर मॉम को एक गिल्ट है. बिकॉज पेरेंटिंग ऐसा प्रोसेस है, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी. तो आप कितने भी ऑप्टिमाइज 100% टाइम दे दो बच्चे के साथ, यू कैन नॉट बी परफेक्ट. तो गिल्ट नेचुरली आ जाएगा, बिकॉज यू आर सीकिंग परफेक्शन. आ नहीं रहा है तो गिल्ट फीलिंग हो रहा है. प्लस लाइक आई मेंशन कि सोसाइटी का भी वहाँ रोल आ जाता है कि थोड़ी बहुत सोसाइटी भी हमारी उस तरीके से गिल्ट ट्रिप करने के लिए बैठी होती है कि ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे हो रहा है, वेट कम नहीं हो गया, वेट बढ़ गया, वेट पतला हो गया, मोटा हो गया, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के कैसे काम पे जा रहे हो, हजार चीजें बोलते हैं सोसाइटी भी. Again, comes back to the main thing, support system. A good support system allows you to actually process it better rather than taking it all in. So जैसे वो guilt आया, that's an emotion. तो उसको कैसे manage कर सकते हैं? Right. So there are two things, very important things. First is guilt and second is shame. Guilt says that I did something which I should not have done. Shame says I did something wrong and I'm a wrong person for that. Like I was not able to spend enough time with my child today. I feel guilty for that. Yeah. Versus shame says I was not able to spend enough time with a child. I'm a horrible mother. Shame ने आपकी आइडेंटिटी पे टारगेट कर दिया, गिल्ट ने उस चीज पे टारगेट करा. तो मतलब जब आप गिल्ट को एड्रेस करोगे तो फिर भी सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, आज मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा ना, वीकेंड पे मैं बाहर लेके जाऊंगी, एंजॉय करूंगी, सेलिब्रेट करूंगी, व्हाटएवर. सो यू एक्ट ऑन इट. शेम तो आपको एक्ट करने का मौका नहीं दे रहा है. आप हॉरिबल मदर बन चुके हो अपने दिमाग में. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो नो, अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा. इट विल कम आउट इन हॉरिबल वेज ऑब्वियसली. सो वो गिल्ट एंड शेम को चैलेंज कर पाना कि गिल्ट के पास एक एक्शन आता है, शेम तो आपको खुद ही प्रॉब्लम बना दिया है, फिर आप क्या करोगे इसके साथ? तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि डू नॉट लेट द गिल्ट कन्वर्ट टू शेम. एक्ट ऑन द गिल्ट, अंडरस्टैंड द गिल्ट, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ ट्रेड ऑफ. आप बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, 100% प्रेजेंट हो, तो थोड़ा बहुत आपका प्रोफेशनल लाइफ विल टेक अ टॉस. एंड द सेम थिंग कि अगर आप बाहर जा रहे हो बच्चों के लिए और अपने लिए भी कर रहे हो, जॉब बच्चों के वेलबींग के लिए कर रहे हो, बच्चों को एक राइट ट्रेडमार्क देने के लिए वर्क कर रहे हो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिस आउट करना पड़ेगा. सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन समथिंग और द अदर. तो एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ एंड मेक पीस विद इट रादर देन फाइटिंग द अदर वे अराउंड कि कुछ और होना चाहिए था. एब्सोल्युटली. आई जस्ट होप आज जो मॉम्स ये एपिसोड देख रहे हैं, प्लीज accept that and make peace with it instead of turning that guilt into the shame. Absolutely. एंड हम लोग जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो मदर एंड फादर के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो एक बच्चे के इमोशनल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है? When a child is born, वो बच्चा is the most insecure stage of his life, his or her life. Why? Because उसकी जो everything the child wants, be it physically or emotionally, has to be done by the caregivers. Right. एज एन अडल्ट हम ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ तो हम खुद से जाके खाना बना लेंगे, खुद से कर लेंगे, खुद से पैसे कमा लेंगे, खुद से ट्रैवल कर लेंगे. तो हमारे में ऑटोनॉमी बन चुकी है. बच्चों को ऐसा ऑटोनॉमी है ही नहीं. दैट्स व्हाई दे क्राई फॉर एवरीथिंग. दे आर डिपेंडेंट एवरीथिंग. राइट. अब बच्चे को पता है कि ये जो दो लोग हैं, ये हमें वो मेरी ऑटोनॉमी देने वाले, मुझे सिक्योर फील कराने वाले एंड मेरी लाइफ को सॉर्ट करने वाले. नाउ सडनली
उनको दिखे कि ये जो लोग मुझे प्रोवाइड करने वाले ये सारी चीजें उनके बीच में एक प्रॉब्लम आ गई है, Right. तो उनके नीड्स के ऊपर क्वेश्चन मांगा गया ना बच्चों के ऊपर कि मेरी नीड फुलफिल नहीं होगी अब तो। इफ आप ही लोग लड़ रहे हो तो फिर हमारा क्या होगा, मेरी नीड कौन फुलफिल करेगा? तो वहां पे बच्चा पैनिक करता है, Okay. राइट, एंड देन eventually the other things follow naturally. तो it's very very important how you balance yourself and how you behave in front of a child and how do you handle conflicts in front of the child. इसका मतलब ये नहीं कि conflicts and differences नहीं आएंगे, you're human beings, so there are going to be conflicts and differences. How you manage it, because अगर आप अच्छे से conflicts को manage करोगे तो बच्चों को भी ये kind of एक feedback मिलेगा कि conflicts can be handled gracefully. Correct. If you handle conflicts in negative in a very strong way, then बच्चे को और पहले तो impact करेगा अपनी security के ऊपर, and दूसरी बात obviously उनको भी ये लगता रहेगा constantly कि इसी तरीके से करते deal conflict, and they obviously they grow out to become again dysfunctional human beings. Right. So जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ इशू है, so how can that conflict be managed in a way कि उस बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट ना आए? सबसे पहली चीज टोन, एड्रेस योर टोन, अंडरस्टैंड योर टोन. आपको एक मोडालिटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बिल्ड करना जरूरी है, तब बात करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है, ताकि आप एक राइट लैंडमार्क सेट कर सको. बट अगेन आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगेन इट्स वेरी इजी सेड एंड डन, बिकॉज मेनी टाइम्स पेरेंट्स एंड कपल्स के बीच वो मान लो रैपो बचा ही नहीं है, तो फिर वो पेरेंट्स भी इंसान ही है, वो भी खुद को रेगुलेट इतना ही कर पाएंगे, तो वो कहीं भी निकलेगा, वो भी नहीं उस पॉइंट पे देख पा रहे ना कि बच्चे सामने नहीं है. चाहकर तो कोई नहीं करना चाहता बच्चों के सामने लड़ाई, बट उनको उस पॉइंट पे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुद को हैंडल करूं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो भी आपके अंदर चैलेंजेस है, इफ यू नॉट अपने डिफरेंसेस आ चुके हैं आपके रिलेशनशिप में कुछ, ट्राई टू सॉर्ट इट इन योर ओन बेडरूम, इन योर ओन पर्सनल स्पेसेस, रादर देन टेकिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, एंड वर्क ऑन द रिलेशनशिप अगर हो सके तो. अगर नहीं हो रहा, इफ इट इज गेटिंग वेरी अगली ना, तो सेपरेट, गेट टू द पार्ट ऑफ सेपरेशन, बिकॉज लोग काफी बार बोलते हैं कि आई एम जस्ट स्टेइंग फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, व्हिच टर्न्स आउट टू बी मोर मिजरेबल फॉर द चाइल्ड. एक बच्चा अगर एक इंडिपेंडेंट पेरेंट के साथ रह रहा है ना, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो 100 टाइम्स बेटर है देन बीइंग इन अ विद टू पेरेंट्स विद अ वेरी हॉरिबल मैरिज. अच्छा. बिकॉज बच्चे को तो सिक्योरिटी, एटलीस्ट को सिक्योरिटी तो मिल रहा है ना कि यहाँ पर शांति है, सुख है. और बच्चे के ग्रोइंग फेज पे सिक्योरिटी ना मिले तो बच्चा चैलेंज कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा लाइफ में? उसकी सारी जिंदगी तो फाइट बन के रह गई. कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अलर्ट मोड पे कॉन्स्टेंटली रहना है. तो इट्स बेटर, अगर आप बहुत चीजें अगली हो चुकी है तो बेटर सेपरेट. ऐसा आज के दिन में चलो चीजें, थिंग्स आर चेंजिंग एंड टैबू भी कम होता जा रहा है विद टाइम, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बच्चों के लिए वो मत रखो कि बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ये चीज. Right. But I've seen कि after becoming parents, बहुत सारे couples में एक वो distance आ जाता है उनके relationship में. Right. Why do you think that happens? आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ अटेंशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ केयर, लव शिफ्ट हो गया. आप एक दूसरे के लिए जो कर रहे थे, अफेक्शन दिखा रहे थे, इंटीमेसी थी, आपका कनेक्शन था, आपकी बातें थी, आपका रिस्पेक्ट था, वो सब आउटसोर्स हो गया दूसरे इंसान के, दूसरे बच्चे की तरफ बेसिकली. तो वो भी चीज है कि आपका नेचुरली आपका जो टाइम है वो मिनिमाइज हो चुका है. तो वो तो पार्ट रहेगा, बट लेकिन उसको एड्रेस कर पाना, उस बारे में बात कर पाना, ताकि दूसरे इंसान को ये ना लगे कि ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बीच में. टॉक अबाउट द फीलिंग्स, देखो आई एम फीलिंग दिस थिंग, ताकि उनको भी अश्योरेंस मिलता रहे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड अनदर थिंग, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि ट्राई टू स्टिल डू थिंग्स जितना आप कर सको जो आप पहले भी करते थे. लाइक गो आउट फॉर ट्रिप्स, गो आउट फॉर डेट्स, बच्चे के साथ ही जाओ. Of course, it won't be as pleasurable, as exciting as before being parents, but at least you have got that bond with yourself, and बच्चों को भी वो bond दिख रहा है कि this is how a relationship should look like. Correct. Right. तो लोग क्या कहते हैं कि यार बच्चों के साथ सब कुछ spoil हो जाता है, कौन जाए डेट पे, खाना मुझे पड़ रहा है, फिर उस टाइम एक बार वो खिला रहा है, एक बार वो खिला रहा है, क्या फायदा जाकर बाहर. लेकिन एटलीस्ट आपको वो एक पर्सनल स्पेस तो मिल गया ना, घर से बाहर निकल के अपना एक बॉन्ड करने का मौका. और कहीं ना कहीं आप उस तरीके से बच्चों को भी ट्रेन करना सिखा रहे होते, खुद से खाना, और बच्चों को सिखा रहे होते हो कि दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव इन अ पब्लिक एनवायरनमेंट, पब्लिक स्पेस एज वेल. आप बचपन पे फिर वो जितना आप रिस्ट्रिक्ट करते जाओगे, बच्चा भी कोई मौका नहीं मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, सीखने का, और आपका भी पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब होता जा रहा है. सेम गोस वेकेशंस, वहीं पर पेरेंटिंग ड्यूटीज कर लो, लेकिन एटलीस्ट एक नए एनवायरनमेंट में आपका माइंड रिलैक्स है ना, कि देयर आर सर्टेन लेस रिस्पांसिबिलिटीज. आप होटल में बैठे हो, खाना नहीं बनाना है. आई थिंक अगर आप फॉर एग्जाम्पल वेकेशंस पे भी नहीं जा सकते हो, तो इवन घर पे पूरे दिन में मेक इट अ पॉइंट कि आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो. मे बी आफ्टर बच्चा सो गया है, शायद उसके बाद टेक आउट हाफ एन आवर और 1 hour, वॉच अ मूवी दैट यू लाइक और समथिंग लाइक दैट. बट
spend some time together. बिल्कुल, go out for walks, very basic thing. I always say कि आप walk पे जाओ, बच्चों के साथ लेकर जाओ, because walking is one of the very soothing activities that you can participate in. You talk things, you deal with things, your nervous system calms down. Great for But all you of know, us. after becoming parents, लोग अपने relationship पे काम करना छोड़ छोड़ देते देते हैं, हैं हाँ। because उनका पूरा focus बच्चा हो बच्चे जाता पे है, होता है. हाँ, They, you know, वो बच्चा center of their हाँ, world बन हाँ, जाता है. So वो अपने relationship पे work करना भूल जाते हैं. And उसी वजह से I think वो धीरे धीरे they emotionally disconnect. And बिल्कुल. finally, I've seen so many you know, couples separating and all these things. So मेरे घर में I think मेरे husband है, वो हमेशा he makes it a point कि राहत, she's my daughter, उसको हमेशा बोलते हैं बेटा तेरे से ज्यादा है ना मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, मैं सोनिया को प्यार करता हूँ, यू कम नेक्स्ट. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है दैट कि आप अपनी वाइफ को उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, दैट शी कम्स फर्स्ट एंड देन योर चाइल्ड. Right. I think you have to work on your relationship even after becoming parents. Absolutely. Prioritize की बात होती है कि आपके लिए relationship कितनी बड़ी priority है. Absolutely. And that starts before being a parent. हाँ. आप पेरेंटिंग के बाद सडनली तो शिफ्ट आना बहुत मुश्किल है ना. आपके पहले से वो दिमाग में थॉट होना चाहिए कि रिलेशनशिप हैज टू बी प्रायोरिटी. बिकॉज पेरेंट्स जस्ट रेडी होते हैं कि हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चे को पालना है, बट उसके बाद जो उनके रिलेशनशिप में शिफ्ट आता है उसके लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है. बिल्कुल. एंड नोबडी टेल्स देम कि ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू. सो हाउ डू वी गिव दिस इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट टू आवर किड्स? वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आता है कि हाउ डू वी रेज इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स. बट बच्चा आपको देखकर ग्रो कर रहा है. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, देयर आर वेरी लो चांसेस कि बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट बनेगा. बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल हमें ही वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है, हमारे ही कप्स एम्प्टी हैं, तो हाउ डू वी पोर विद दोज एम्प्टी कप्स? हम कैसे बच्चे को सेम एनवायरनमेंट देंगे? आई डोंट नो, मतलब ये कैसे होगा? You have to work on yourself. There are no shortcuts to this. मतलब I would have loved to share some shortcuts कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, but there are no possible shortcuts. It will show up in some way or the other. आप बच्चों के सामने बहुत परफेक्ट आइडियल लाइफ बना के बैठ चुके हो, ठीक है, दे रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पे आपके लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा प्रोसेस कि आप कहीं और फट रहे हो. बच्चों के सामने नहीं फट रहे हो, इतना आप हैंडल कर पा रहे हो, लेकिन अपने पति के साथ फट रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ फट रहे हो, आप अपने ऑफिस में फट रहे हो. तो पॉइंट वही हो गया, इधर का उधर निकल रहा है, डैमेज तो हो ही रहा है. बच्चों को नहीं हो रहा, आपको हो रहा है. और वो आपको डैमेज होना चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर बच्चों पे भी आना चालू कर जाएगा. तो बेस्ट थिंग इज कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ऑन योर पास्ट ट्रॉमास, ऑन योर ट्रिगर्स, ऑन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर, ऑन डीलिंग विद प्रोसेसिंग विद इमोशंस इन अ बेटर वे. वो चीज आप खुद पे काम करना चालू करो. तो जब आप खुद के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकोगे अपने लिए एज अ पर्सन, तो नेचुरली बच्चों के साथ भी वो चीज खुद ब खुद आ जाएगा. बिकॉज बच्चों को क्या चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ केओटिक हो रहा है और केओटिक रिएक्शन ना आए तो सेफ्टी है. और वो कैसे पे डिपेंडेंट होगा? जैसे मैंने बोला कि बच्चा स्टार्टिंग के 3 साल तक आपके ऊपर को डिपेंडेंट है टू रेगुलेट देयर इमोशन. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है ना कि बच्चा आपके इमोशन को 30 से 90 सेकंड के बीच में पकड़ लेता है. वो वेट करता है कि मैं गिरा. अब वो वेट करेगा 30 से 90 सेकंड का टाइम आएगा. अगर आपका पैनिक रिएक्शन आ गया, बच्चा रोना चालू करेगा. एंड देन अगर आप काम कंपोज एंड डील करो बेटर तरीके से, बच्चा भी शांत तो निकल जाएगा, वो अगले चीज में निकल जाएगा वो चीज. तो द चाइल्ड हैज दिस टाइम फ्रेम 30 to 90 सेकंड्स. तो आप वो स्पेस दो कि ओके आई हैव टू बी कंपोज्ड, एंड फॉर दैट टू हैपन कि आप रिएक्ट ना करो उस पैनिक की तरीके से, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. क्योंकि उस मोमेंट पे ना, द मोमेंट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, इन द मोमेंट ऑफ इमोशनल टर्मोइल नो लॉजिक अप्लाइज. राइट, उस पॉइंट पे ना आपका दिमाग चल रहा है ना बच्चे का दिमाग चल रहा है. बट आपको वो वर्क के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा उस केओटिक मोमेंट पे भी मैं अपने इमोशंस को कैसे सॉर्ट करूं. राइट, सो दैट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट की. फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है, सो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक जब भी आर्गुमेंट्स होते हैं ना, तो इसके पीछे का एक टर्निंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको और आपके पार्टनर के बीच में रिस्पेक्ट है तो यू बोथ विल मेक श्योर कि चीजें बहुत अगली ना हो. बिकॉज यू बोथ उस हीटेड पॉइंट पे आपको पता होगा कि आई डोंट हैव टू गेट देयर. लेकिन रिस्पेक्ट डिसॉल्व होनी चालू हो जाती है एट टाइम्स बिकॉज ऑफ रिजेंटमेंट, बिकॉज ऑफ अनसेड इश्यूज, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, सो मेनी फैक्टर्स. तो वो हीटेड आर्गुमेंट्स का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, उनकी बातें रह जाती है दिमाग में. सो पहले गेट टू द कोर ऑफ इट कि
exactly as a relationship, as a couple, how are you exactly operating right now? Hmm. Because अगर वो बेस इशू है तो बिहेवियरली वो स्ट्रेंथ स्ट्रांग ही निकलेगा, Okay. राइट? तो वो पॉइंट को एड्रेस कर पाना, एज अ कपल हाउ इज योर हेल्थ, आप लोग कैसे इवॉल्व कर रहे हो, कैसे बेटर पॉइंट पे बैठे हुए हैं, दैट इज हाउ यू कैन वर्क ऑन द बिहेवियरल आउट फ्रंट ऑफ इट. Okay. तो आप उस पर वर्कआउट करो कि क्या रिजेंटमेंट है, क्या ट्रस्ट इश्यूज है, क्या कम्युनिकेशन गैप है. ट्राई टू एड्रेस इट, ट्राई टू वर्क ऑन इट, ट्राई टू टॉक अबाउट इट, ट्राई टू टेक थेरेपी, कपल थेरेपी एज वेल. दैट कैन बी हेल्पफुल एज वेल इफ समथिंग्स आर वेरी ऑफ, Hmm. ताकि एटलीस्ट आप एड्रेस तो करो चीज़ों को एक बेटर तरीके से. बिकॉज वही अगर कोर में इशू है ना तो इंसान निकालेगा, निकलना एक प्रोसेस है. और ये सुन के मतलब आधी जो मेरी ऑडियंस है ना उनमें से वाइफ्स के कमेंट आते हैं, मेरा हस्बैंड सुनता भी नहीं है कि हम क्या बोलना चाहते हैं. हाँ. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. हाँ बिल्कुल सही बात है. मोस्ट ऑफ द केसेस वही हो गया ना, एक पॉइंट वहां पहुंच गया ना जहाँ पे women like to talk and जब उनको वो प्रोसेस नहीं मिलता है they get louder and louder and louder. They want to resolve. Yes, right. Men like to have their own space. और जितना उनको नहीं मिलता है they go distant and distant and distant. अब सोचो क्या हो रहा है कि a woman is wanting to talk. Right. She wants to connect. Yeah. Man is taking it personally that she's fighting with me and she's attacking me. उस प्रोसेस में men wants to be distant. अब दोनों के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है. Yeah. उसको मेन को ये लग रहा है कि मुझे तो स्पेस दे दो ना, बट क्यों मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो. वुमेन को लग रहा है आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम मी. तो बोथ ऑफ देम आर एंडिंग अप फीलिंग अनवर्दी इन द रिलेशनशिप कि you don't understand me, what do I want? Right. So the more you get louder, the more the person will get distant, and the more you get distant, the more she get louder, Yeah. and both are not ready to take the responsibility of it. हाँ. And दोनों की fault नहीं है. दोनों को समझ नहीं आ रहा है तो करना क्या है. मेन को ये लग रहा है कि if she's talking a lot then problem है, दिन भर बोल नहीं रहना है. हाँ. अब women को ये लग रहा है कि इतना भाग क्यों रहा है इस चीज के तरीके से. तो डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है. तो प्रॉब्लम बस ये चीज है ना कि आप एड्रेस करो कि there are gender issues, there are gender gaps, big gender gaps, and how men and women process their emotions. आप जब ऑब्जर्व करोगे तो बेटर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक मिड पॉइंट पे आने की कोशिश करोगे. आपका वे या उनका वे नहीं चलने वाला कभी भी रिलेशनशिप में. इट हैज टू बी अ मिड वे जहां पे आप एड्रेस कर सको कि ओके दिस मैन नीड्स सम स्पेस, लेट मी गिव हिम सम स्पेस एंड विल कम बैक एट द कम्युनिकेशन पार्ट. और फॉर द मैन टू आल्सो अंडरस्टैंड कि दिस person needs to talk about her feelings, let me give her the time to talk about her feelings. If I don't give her the time, it will get louder naturally. Right. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर women के लिए फिर भी ये चीज ज्यादा strongly क्यों आती है? Why do women complain a lot about these particular factors? Because women के लिए relationship anyway is a very primary thing. मतलब their life revolves on relationships, so they're very strongly relationship centric. तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड है कि रिलेशनशिप तो वो कराना ही कराना, बाकी चीजें हो ना हो बात की बात है. मेन के लिए जिस तरीके से कंडीशनिंग करी गई ना, रिलेशनशिप फॉर मेजॉरिटी ऑफ द मेन आर नॉट प्राइमरी एट ऑल. पहले काम आता है, पहले काम आता है, बाकी पहले पैसा आता है, पहले फैमिली आती है, पहले इमेज आता है. तो रिलेशनशिप हो ना हो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. इंपॉर्टेंट हो, अच्छा हो नहीं अच्छा हो नहीं फर्क पड़ता है. तो अब यहाँ पे एक और एक गैप आ गया ना प्रायोरिटी का. बट एक पॉइंट पे अगर वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मान लो गैप आ चुका है, आपको समझ में आया कि आपका हस्बैंड इस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, ऑपरेट नहीं कर रहा है, बट अदर चीजें हैं गुड एंड फाइन, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू get to a point of acceptance of that part as well, ki what this person is capable of doing and what this person is not capable of doing. Okay. And let the person evolve from there. आप जितना उसको पुश करना चाहोगे, पनिश करना चाहोगे, इतनी रिजिडिटी बढ़ती जाएगी and then उतना डिस्टेंस बनता जाएगा. And वही लोग करते हैं most of the times. Correct. गैप है ना कि समझना, दोनों जेंडर समझना नहीं चाहते गैप कहाँ पर एग्जिस्ट कर. दोनों चाहते हैं ना कि जैसा मैं दुनिया सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए. Correct. The women also think the same, जो कि दोनों गलत है. It can never be the same. अगर सेम होता तो जेंडर अलग क्यों होता? Right. And what are 3 habits जो emotionally strong couples करते हैं that every new parent should adopt? So again, mutual goals. Have something, shared goal, shared value. Of course, raising a child is a biggest mutual goal, biggest mutual hobby for yours. लेकिन उसमें आप responsibilities बांटो, divide करो. वहां पे रेजिस्ट ना करो कि मैं कितना तुम कितना, जितना कर सके. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सब कोई इक्वल कर सकता है, लेकिन जितना हो सके पॉसिबल, एटलीस्ट शो द अदर पर्सन दैट यू आर आल्सो डूइंग समथिंग फॉर द रेजिंग द चाइल्ड. कभी तुम्हारा 100% होगा, उसका 50 होगा, कभी उसका 100 है. बट दिखे कि कुछ हो रहा है, ऐसा ना दिखे कि भागने का मन कर रहा है, जो बहुत सारे मेन करते हैं सैडली कि यार देख लो यार, तुम कर लो, तुम खिला दो, तुम सुला दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, एंड प्रेजेंट ही नहीं, वो अपनी लाइफ में बिजी है. मेरे काम नहीं अफेक्ट होना चाहिए. I think that's the biggest red flag. It's a big problem for sure.
कि उनको है कि नहीं मेरा जॉब यहाँ था तो वो यहीं रहे, मेरे दोस्त यहाँ थे तो यहीं रहेंगे, मेरी फैमिली यहाँ थी यहीं रहेगी. Your life is going to get impacted after giving birth to a child. And if you're not ready for that, then don't take that responsibility. Correct. As simple as that. So take that responsibility and ये shift आएगा, आने दो, कोई बात नहीं. I always say to the young parents कि you should allow your life to slow down a bit after having kids. अगर slow down नहीं हुआ फिर तो natural सी बात है ना कि आप frustrate होते रहोगे. Correct. तो होने दो slow down, but that's okay. एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको फिर से वो you will find yourself again and you'll find to build yourself again. Right. लेकिन अगर स्लो डाउन में आप भागते रहोगे ना कि नहीं भागना है तो ना आप अपने साथ फेयर हो, ना बच्चे के साथ फेयर हो, ना अपने पार्टनर के साथ फेयर हो, बिकॉज कर तो पानी रहे नहीं बट फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हो. राइट. तो बेटर एक्सेप्ट कर लो कि स्लो डाउन होनी है जिंदगी थोड़ी सी, इट्स ओके. बाकी चीजें खुद ब खुद वहां पहुंच जाएंगी एक पॉइंट के बाद. सेकेंड पार्ट अगेन जो फॉर पेरेंट्स एंड फॉर यंग पेरेंट्स एंड कपल्स टू आल्सो अडॉप्ट इज कि आप साथ साथ कम्युनिकेशन के चैनल को ब्रेक मत होने दो. कि नॉर्मली यही होता है कि अगेन सिंस द अदर पर्सन द चाइल्ड बिकम सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइफ कि हम बात करना छोड़ देते हैं कि छोड़ यार अपनी नीड्स साइड में हो जाए. बट फाइंड स्पेस टू टॉक, फाइंड स्पेस टू डू थिंग्स विद ईच अदर, फाइंड स्पेस टू कनेक्ट विद ईच अदर. एट टाइम्स कम होगा, नेचुरली कम होगा, 100% पे 10% या 20% हो जाएगा, बट वो चीज दिखाओ एक दूसरे को दैट वी बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब दूसरा इंसान इंपॉर्टेंट फील करेगा तो वो खुद और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भी और मेहनत करके चीजें लेकर आएगा एंड वो बेटर फील करेगा उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे. एंड तीसरी चीज, आप अपने आप को भी मिस आउट मत करो उस प्रोसेस में. योर गोल्स आर इंपॉर्टेंट, योर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, योर हॉबीज आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. तो टॉक अबाउट इट, फाइंड कि आप तो बात करो, निकालो उस पॉइंट की कैसे मैं इसको आई कैन फिगर दिस थिंग आउट or should I wait at this point of time. Talk about your individuality as well. Don't lose yourself in this complete process. ताकि एक मिड पॉइंट पे आपको भी लगे कि ठीक, अगर मुझे थोड़े दिन का एक फुल स्टॉप भी आ रहा है तो इट्स जस्ट अ स्मॉल फुल स्टॉप, इट्स नॉट अ बिग फुल स्टॉप कि खत्म ही होगी जिंदगी यहाँ पे. तो एक होप दिखेगा आगे बढ़ने का. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब वो लोग न्यू पेरेंटिंग के फेज में होते हैं तो इवन व्हेन द हस्बैंड इज ट्राइंग टू हेल्प, पार्टनर इज ट्राइंग टू हेल्प, बट मॉम्स को बहुत अनसपोर्टेड फील होता है. स्टिल दे फील कि यार मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है. वो क्यों होता है? द गैप तो है ही ना बहुत ह्यूज. गैप तो है ही ह्यूज, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 months. फादर का रोल तो बहुत नेग्लिजिबल ही हो जाता है. द चाइल्ड इज गेटिंग फेड बाय द मदर, द चाइल्ड वांट्स टू बी विद द मदर, एंड जो बायोलॉजिकल अर्जेस होते हैं, जो बायोलॉजिकली जिस तरीके से बॉडी बनी है मदर्स के टर्म पे, तो नेचुरली कनेक्शन ज्यादा होता है बच्चे के साथ, और बच्चा भी वही सीख कर रहा होता है. तो जनरली 70-80% तो माँ कर रही है. तो वो लगे उसके बर्डनिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है वो प्रोसेस. एंड एडेड टू द फैक्ट कि हार्मोन्स इतने शिफ्ट हो रहे हैं तो वो गुस्सा और जल्दी आता है कि आपको जो ट्रिगर होने का जो स्पेस पहले यहाँ था अब यहाँ आ चुका है. छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती है. तो यहाँ पे एक पार्ट ऑफ हस्बैंड को समझ पाना कि ये होगा प्रोसेस. आप जितना सपोर्टिव स्पेस दोगे और अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन करोगे तो ना चीजों को डील करना, रेगुलेट करना आसान है. मुझे लगता है उस फेज में हस्बैंड्स ट्राई करते हैं वर्कलोड शेयर करना कि मैं थोड़ी देर बच्चे को संभाल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस वक्त वाइफ्स को इमोशनल स्पेस भी चाहिए होता है. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या इमोशंस फील कर रही है. सो आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है वाइफ्स को वो फील होता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू शेयर वो अपने इमोशंस और वो सारी चीजें कोई समझ नहीं पाता है उस वक्त. और काफी वो भी गिल्ट के साथ आता है ना कि अगर एज अ मॉम, लेट्स से यू बिकम अ मॉम एंड देन इवेंचुअली यू फील कि ये बच्चा हो तो गया, मे बी फर्स्ट थिंग आई एम नॉट फीलिंग लाइक अ मॉम, कि अब कैसे रेस करूं, मुझे पता नहीं कैसे रेस करना है. नहीं है, मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है. और दूसरी चीज काफी कंफ्यूजन भी होता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली, बट डू मतलब कैन आई रियली डू दिस थिंग, और आई एम हेटिंग माई बॉडी, आई एम हेटिंग माई माइंड, आई एम हेटिंग एवरीथिंग अराउंड इट. और कभी कभी वो बच्चे पर निकल जाता है. एंड आसपास के कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो, यू नॉट गुड इनफ, आप. सो वो सारी चीजें इतनी एड अप कर देती हैं. राइट. तो ये अगर स्पेस मिल जाए ना माँ को अपने किसी एक पर्सन के साथ शेयर कर पाने का, तो एटलीस्ट वो पॉइंट उनको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत ही बेकार थॉट्स नहीं है, नेचुरल थॉट, एंड इट्स ओके. तुम आपने शेयर किया थॉट कि ठीक ऐसा फील हो रहा है, बट कोई नहीं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, विल डू इट टुगेदर. तो एक एश्योरेंस मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया, एंड थिंग्स गेट बेटर नेचुरली आफ्टर. So yeah, we come to a very interesting rapid fire round now. One generational pattern every Indian parent must break. Comparison.
One thing every mom should stop feeling guilty about. Being a good mom. One thing dad should do more often at home. Participating in the very basic activities. Okay. One trait emotionally strong kids always have. Resilience. Yeah. One emotionally damaging line parents should never say. तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? One thing couples should say more often to each other. I'm there for you. One biggest green flag in a partner. Respect. One red flag that people ignore in relationships. Love bombing. What is that? Love bombing physically or emotionally in the sense कि आप bombard करते हो दूसरे इंसान को with a lot of lovey-dovey things Much. which does not sustain for a long period of time. Okay. मतलब आपने बहुत कुछ तो expose कर दिया एक बार में, Hmm. लेकिन वो sustain नहीं कर पा रहा है. Correct. Sustainability is much more important than intensity. Very right. One habit that instantly boosts emotional intelligence. Reading or walking. One thing people misunderstand about emotions. They see it as a weakness, but it can be a bigger strength. One thing that makes moms feel most seen and loved. Being understanding this very simple fact that they are still as important to the partners as they were before. Yes. One sign someone is emotionally unavailable. The higher they are chasing or running after something, the more emotionally unavailable they are. Be it money, be it friends, be it career, or be it any other thing. One stereotype about Indian families that needs to die. Joint families are always better than nuclear families. One best advice you have ever received. Be open to change. Yeah. One question everyone should ask themselves daily. What was the best part of my day? One message for every overwhelmed mother listening. Take a break, you're doing your best. Amazing. Your answers were so on point, Shivam. Acha, Shivam, you're a master in emotional intelligence, everything. So, क्या आपको घर में या अपनी वाइफ के साथ कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है? See, There are no fights between you and your wife. Of course, it happens at times, but intensity of it is less, and the gaps भी बड़े ही होते हैं. मतलब it hardly happens pretty quickly. मतलब बहुत rarely होते हैं. But एक चीज from what we have seen and personally जब चीजें once you start to understand things, deal with things, understand things in a better way, एक जो बात आती है ना, the ability to understand each other and what each other wants becomes very smooth, very wonderful. And वो चीज fights में, conflicts में बहुत minimize हो जाती है. Because then you don't fight after it, you don't run after these particular things. वो आपके एक ease of dealing with conflicts and conversations comes out very naturally. तो one thing वो चीज होती है, it's not कि अब इंसान है, differences है तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी. But ये है जरूर है कि with emotional intelligence, for both for me and for my wife, things become very stable and growth oriented. कि हम कैसे better आगे बढ़े. And this is something again, she has been much better at emotional intelligence than me. अच्छा. Because as a woman, see, women are normally more emotionally aware right from the start. She understands a lot about me as well. I understand a lot about her as well. तो अंडरस्टैंडिंग रही है हमारे बीच में उतनी ज्यादा कि हम समझते हैं कि दोनों को चाहिए क्या एक दूसरे को. कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या कुछ एक्टिविटी आप दोनों फॉलो करते हो टू कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रांग? We are involved in everything together. Like we cook together, we go for a walk together, we raise the baby together, we sleep at the same time, we talk a lot, every week we go on a date, we travel every few months, we plan for things mutually, we make decisions about the house equally. No one ever does कि अच्छा ये decision तुम्हारा होना चाहिए, मेरे मेरा होना चाहिए. Be the simple fact कि कहाँ जाना है घूमने, और the simple fact कि घर में क्या आना चाहिए. Although हो सकता है कि चलो मैन ले लेगा decision, ये मेरा काम है, ये मेरा फोर्ट है, और women ले लेंगे, but we still talk about it. Amazing. So before we end this episode, कोई एक ऐसी एक्टिविटी या एक्सरसाइज दैट एवरी पेरेंट वाचिंग दिस एपिसोड कैन गो एंड डू विद देयर किड्स या फैमिली टुडे? I would, like I mentioned before as well, go for more frequent walks and inculcate the habit of reading for your child. Okay. It will the most magical transformation for the child, for you, because first it gives you a very intimate space with your child. Secondly, the child learns patience, and thirdly, it's a very beautiful skill to handle and sit with your emotion, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा स्ट्रगल हो चुका है.
शांति के साथ बैठना आदत ही नहीं है हमें। तो हम तो हर एक लास्ट स्टार्टिंग ऑफ द डे से एंड ऑफ द डे हम मोबाइल फोन से स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं मोबाइल फोन से। राइट। आई थिंक एंड ऑफ द डे ऐसा होना चाहिए आपकी फैमिली के साथ, वेयर यू एंड योर किड्स आर टॉकिंग अबाउट योर डे, कैसा गया, बिल्कुल। एंड बच्चा आपके साथ सेफ फील कर रहा है टू शेयर एवरीथिंग, देयर इमोशंस, चाहे उन्होंने कोई गलती क्यों ना कर दी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी हेजिटेशन आना ही नहीं चाहिए कि गलती का मतलब पनिशमेंट। या बिकॉज हम डिसिप्लिन वर्ड को बड़ा नेगेटिवली यूज करते हैं। हम कहते हैं डिसिप्लिन करना मतलब पनिश करो बच्चे को, मारो पीटो, ये करो, डांटो। नो, स्ट्रिक्ट हो जाओ। you have to be structured in what you want the child to grow up as. पढ़ाओ, सिखाओ उस बच्चे को कि यस इस समय सोते हैं, इस समय खाते, इस समय पीते हैं। तो ये भी डिसिप्लिन है, एंड दिस नीड नॉट बी अ टास्क, इट कैन बी द मोस्ट स्वीटेस्ट एक्टिविटी, ताकि बच्चा भी कंफर्म्ड रहे, आप भी कंफर्म्ड रहे, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ। एंड अगर बच्चे ने कोई गलती शेयर भी कर दी तो टेक इट एज अ लेसन के वहां से आपको उसको क्या टीच करना है, कैसे उसको वो चीज सिखानी है, ना कि भाई गुस्सा आ गया अब तो पिटाई हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिकॉज पेरेंट्स यही करते हैं ना कि अगर गलती कर दी बच्चा, पेरेंट्स नहीं चाहते कि गलती करे बच्चा, चोट लग जाएगा, ऐसे करोगे तो बार बार चोट लग जाएगा फिर तुम्हें। तो पेरेंट्स बोलेंगे अच्छा मैं अगर पीट दूं अभी तो बच्चा डर जाएगा, इससे वो करेगा नहीं वो काम वापस से। बट डरेगा जरूर, शायद ना भी करे वो चीज, बट उसके साथ साथ 5 और चीजें भी नहीं करेगा। Absolutely. So you're hurting more than building him something. Correct. So this was so insightful. On the ending note, हमारे audience के लिए एक last suggestion या advice that you would like to give. हम emotions से जितने भागने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें को और complicate ही करती जाती है rather than making it simple. तो have a daily journal or place to communicate and talk and process your emotions. जितना इमोशंस के इन टच में रहेंगे उतनी लाइफ सिंपल होती जाएगी, एंड लाइफ इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय रनिंग आफ्टर थिंग्स और रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स विदाउट एनी पर्पस। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अनदर पेरेंट हु नीड्स टू हियर टू दिस एपिसोड, एंड इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।